So the third column now shows the owner of that file or directory. So when I look at the third column, this will tell me who is the owner. Especially if I go to TMP, you might see a lot of different types of owners. Let me create my file also. And then you look at it, there may be multiple different owners for multiple different files. You see that certain files are owned by Oracle, certain other files are owned by root, and certain other files are owned by JDB. So that third column shows you the owner of the files, whereas the fourth column tells you the group membership of this file. Group membership means उसका file का group owner कौन है. So what does it means? Well, it simply means that anybody who has his group membership as backup DBA can do these things on that file. The second set of permission mask tha, that applies to the group member. There could be many people who may be a member of this group backup DBA. Then what those people, if they are member of backup DBA, can do with this file? Well, they can only read this file. And then one who is neither the owner, one who is not the member of backup DBA group, all such people would be called as others. And that's what indicates the permission for the others. And what does the next column tells me? We are now talking about the fifth column. We are talking about the fifth column. The fifth column shows the size of files or directories in bytes. Even if for an empty directory, you might likely see, especially on older Unixes, you are likely to see the empty directory sizes as 4096 bytes. And then file will show you the exact size of the file in bytes. Let's take an example. I'm back into my home directory. I'm checking ls-l. बहुत सारे केसेस में डायरेक्टरी के जगह आपको 4096 दिखेगा. So now you take the fifth column shows the size of files or directories in bytes. An empty directory would consume 4 kilobytes of a disk space. And I might have shown you यहाँ पर 4096 दिखते हैं. Now that's the old context. Starting from Red Hat Linux 7, the directory also does not by default consumes 4K. तो ये डिफरेंस है. जब वो वीडियो बनाए गए थे तब वो डिस्क्रिप्शन उस वर्जन तक के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए सही रहा होगा. Does it mean that it holds true even today? May or may not. Well, most of the things hold true, but not all of it. And here's one classic example. I told you that an empty directory consumes 4 kilobytes of a disk space. Whereas I don't see an empty directory consuming 4 kilobytes as a disk space. I only see 62 bytes. But यही अगर आप Linux version 6 तक यूज करो और आपने कोई empty directory अगर बनाई है, that empty directory itself will show you a size of 4096 bytes. And then for files, the files will consume exactly the same amount of number of bytes as might be the text. मैंने बोला ये rep.txt में 17 बाइट्स का स्टोरेज लगा है. 17 बाइट्स. लेट्स काउंट. THIS 4 स्पेस 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. तो मैं 16 बाइट्स काउंट करता हूं लेकिन दिखाता 17 है, which is interesting. Let's create new.txt. I said A, maybe B.
somebody might be expecting कि इस फाइल ने 4 बाइट्स ले रखे होंगे. When I look at it, it's not exactly 4 bytes, but something else is also there which your eyes can't see. So I checked new.txt. मुझे लगा था कि 4 बाइट्स होंगे इसमें. ए बी 3 बार ए और 1 बार बी, तो 4 बाइट्स होने चाहिए. 8 दिख रहे लेकिन मुझे. Well, apart from the maths to relate it, what does this column shows? Well, this column shows the size of the file in bytes, or for that matter, the size of a directory in bytes. But why are they not going hand in hand? यहाँ मुझे 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, पर दिखाते हुए ये 8 बाइट्स दिखा रहा है. ऐसा क्यों? That's because there are some things that your eyes can't see but a computer can see, and that's a new line character. यही अगर मैंने एक ही लाइन पे लिखे होते तो कुछ अलग बात होती, लेकिन वही मैंने अलग अलग लाइन पे लिखे तो कुछ अलग बात है. So there is something your eyes can't see, and your eyes can't see a slash n, slash n, slash n, and slash n. तो किसी ने बोला ये, तो आप बोल रहे हो कि वो जो अलग अलग लाइन पे ए बी लिखा है वो एक्चुअली कुछ ऐसा है. ऐसे यस, ए है, फिर उसके बाद में एंटर है. एंटर को इंडिकेट किया जाता है इन कंप्यूटर एज अ स्लैश एन विच स्टैंड्स फॉर अ न्यू लाइन कैरेक्टर. तो ये हुआ 1 और ये हुआ 2, फिर ये हुआ 3 और ये स्लैश एन हुआ 4, फिर ये हुआ 5 और ये स्लैश एन हुआ 6, फिर आया बी और ये हुआ स्लैश एन, तो हुए 8. इसीलिए जब मैं ls-l new.txt करता हूं तो वो 4 कैरेक्टर्स जो आपको दिखते हैं उसके अलावा जो स्लैश एन 4 कैरेक्टर्स आपको नहीं दिखते हैं वो भी उसकी काउंट करके उसको बोल रहा है इस टोटल फाइल का स्टोरेज रिक्वायरमेंट है 8 बाइट्स. नाउ पीपल से शो अस दैट इट इज इंडीड ट्रू. डोंट वरी अबाउट द कमांड. कमांड का नाम है octldump, OD, and I am trying to print the file of that ABCD. तो वो फाइल कैसा है? तो ये ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8 and hence those 8 characters. तो जब आप एंटर प्रेस करते हो तो एंटर आपको समझ में आया कि एंटर का मतलब होता है नया लाइन. कंप्यूटर कैसे ध्यान में रखेगा कि यहां पर नया लाइन है? तो एक नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर वहां छोड़ जाता है. दैट नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर इज स्लैश एन कैरेक्टर, एंड दैट्स हाउ योर कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड कि पहले ए के बाद में नए लाइन के ऊपर दूसरा ए टाइप करना है, फिर एक नए लाइन के बाद में एक कैरेक्टर प्रिंट करना है, फिर एक नए लाइन के बाद में बी प्रिंट करना है, फिर तो नया लाइन नहीं था. वेल, द लास्ट स्लैश एन इज टू इंडिकेट एंड ऑफ फाइल, EOF. तो पे अटेंशन, स्लैश एन इज नॉट अ प्रिंटेबल कैरेक्टर. तो वो प्रिंट नहीं होता है, यानी अपने नेकेड आईज को वो दिखता नहीं है, बट वो होता है. एंड दैट यू कैन फाइंड आउट यूजिंग OD कमांड. So that's what you are seeing here. My point, however, is about that column. My point is the 5th column shows the size of the file or a directory in bytes. An empty directory often consumes 4 KB of a disk space, which is not the same in modern Linux. तो पहले अगर एम्प्टी डायरेक्टरी भी क्रिएट करते थे तो 4 किलोबाइट का एक स्पेस लेता था. नाउ विथ मॉडर्न फाइल सिस्टम्स इट डज नॉट precisely takes
4 KB, but it used to take. That also depends on what sort of a file system you are using, so on and so forth. When I look at details of my file system, I am trying to look into कि क्या टाइप का फाइल सिस्टम है मेरा. वेल, मेरा फाइल सिस्टम XFS है, और एटलीस्ट XFS के लिए ये बात सही नहीं है. When the file system is formatted with XFS, then an empty directory will not consume 4K. But it is still true, यहां लिखने से अच्छा है, true for ext star फाइल सिस्टम्स. तो अगर आपने लिनक्स का नेटिव एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम्स यूज किए, विच इज ext2, ext3 और ext4, और वो कब यूज करने होते हैं वो आपको एडमिन टॉपिक्स में मैं समझाऊंगा. एडमिन टॉपिक में विल अटैच डिस्क टू योर वर्चुअल मशीन एंड देन विल प्ले विद दोज डिस्क. उस डिस्क के ऊपर पार्टीशंस बनाना, उसको फॉर्मेट करना, उसको माउंट करना. फिर आगे देखेंगे एलवीएम में कि कैसे एक मल्टीपल डिस्क को क्लब करके यू कैन क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज लॉजिकल वॉल्यूम, सो ऑन एंड सो फॉर्थ. तब ये टॉपिक आएगा. बट फॉर द टाइम बीइंग, एम्प्टी डायरेक्टरी अगर है और आपका फाइल सिस्टम टाइप अगर ext2, ext3, ext4 है, तो एम्प्टी डायरेक्टरी भी 4 किलोबाइट्स का डिस्क स्पेस लेके बैठेगा, which is not true with XFS. XFS does not consume exactly 4 KB. It consumes much less. In old days, even if the directory is empty, it would consume one logical block, and hence the size of an empty directory also used to be 4 KB. अब किसी ने बोला ये एक्चुअली होता क्या है जब हम फाइल लिखते हैं डिस्क पे, which itself is quite interesting. I told you कि आपके पास में डिस्क है, मान के चलिए हार्ड डिस्क. वो हार्ड डिस्क कुछ यूं सर्कुलर प्लेटर है. इस सर्कुलर प्लेटर पे कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर ट्रैक्स है, और हर एक ट्रैक पे एक 512 बाइट का ऐसा ब्लॉक है, और ऐसे सेवरल ब्लॉक्स एडजेसेंट टू ईच अदर है. तो ये रहा एक 512 बाइट का ब्लॉक, उसके बगल में एक और 512 बाइट का ब्लॉक, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो ऐसी डिस्क आप मार्केट से एक उठा लाए हो, ये डायरेक्टली यूज नहीं की जा सकती. इसको सबसे पहले हमको करना पड़ेगा फॉर्मेट. फॉर्मेट करना मीन्स क्या, तो उसके ऊपर वो आइनोड टेबल का स्ट्रक्चर बनाना, जिसके थ्रू इट्स एन एम्प्टी रजिस्टर, आई टोल्ड यू, वेयर फाइल एट्रीब्यूट्स आर ट्रैक्ड. तो पहले इस डिस्क को मुझे फॉर्मेट करना है. फॉर्मेट करते वक्त आपको सिलेक्ट करना होता है फाइल सिस्टम क्या रहेगा. आई में से ext2, ext3, ext4, और इन मॉडर्न यूनिक्स इट माइट बी XFS. तो कोई तो एक फाइल सिस्टम से इस डिस्क को मैंने फॉर्मेट करने का सोचा है. फॉर्मेट करते वक्त क्वेश्चन आता है, द फिजिकल डिस्क ब्लॉक्स of 512 bytes are organized into logical blocks of 4K. तो ऐसे एडजेसेंट बहुत सारे 512 ब्लॉक्स, 512 बाइट्स वाले ब्लॉक को मिलाकर एक 4 KB का ब्लॉक बनाया जाएगा. तो कितने ऐसे ब्लॉक्स लगेंगे? ऐसे 512 बाइट का अगर एक ब्लॉक है, तो ऐसे
8 ब्लॉक्स लगेंगे, तब जाकर कहीं एक 4096 या 4K का एक कोई ब्लॉक बनेगा। तो 512 बाइट्स के ये ब्लॉक्स है ऑन सर्कुलर ट्रैक। ऐसे एडजेसेंट 8 ब्लॉक अगर मिलाए, that will give me a total space of 4 KB, which is nothing but 4096 bytes. So one logical block typically is of 4 KB. अब समझिए कि जब डायरेक्टरी क्रिएट होती है तो क्या होता है। सो व्हेन यू क्रिएट अ डायरेक्टरी, उस डायरेक्टरी की इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए एक लॉजिकल ब्लॉक असाइन किया जाता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड दैट लॉजिकल ब्लॉक व्हिच इज नथिंग बट अ 4 KB ब्लॉक, मींस 8 फिजिकल ब्लॉक्स को मिला के जो एक ब्लॉक बनता है। तो आई विल से 1 2 3 4 5 6 7 8, मान के चलिए यहाँ वो 8 ब्लॉक्स खत्म हुए। ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4 5 6, और लेट्स ड्रॉ 1 हियर। तो ये ऐसे 8 फिजिकल ब्लॉक्स को लेकर एक लॉजिकल ब्लॉक बना। तो 512 बाइट्स के 8 ब्लॉक्स, यहां पर वो उस डायरेक्टरी का इंफॉर्मेशन सेव्ड है। तो एम्प्टी भी अगर होती है डायरेक्टरी तो भी 4 किलोबाइट का स्पेस घेर के बैठती है, बट देन दैट्स ओनली ट्रू इन केस ऑफ EXT फाइल सिस्टम्स। अब आजकल यूनिक्स में, लिनक्स में XFS यूज हो रहा है। तो आपको इंस्टॉल करते वक्त वो पूछता है कि आपको XFS चाहिए या आपको ये EXT से इस डिस्क को फॉर्मेट करना है। ये एक डिस्क को फॉर्मेट करते वक्त बोले गए चॉइसेस है। डिपेंडिंग अपॉन दैट, an empty directory might also consume 4K of space. किसी ने पूछा कि फिर एक फाइल, जैसे मैं यहाँ पर कोई फाइल है new.txt, यहां दिखाता है कि उसकी साइज 8 बाइट्स है, मान के चलो AAAB, और उनके बीच में स्लैशन 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 स्लैशन, तो 4 प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, 4 नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, ऐसे मिला के बने 8 कैरेक्टर। तो अगर सही में देखा जाए तो क्या इस फाइल ने मेरे डिस्क पर केवल 8 बाइट्स की जगह ले रखी है? वेल, आंसर इज नो। अगर मैं इस फाइल की साइज देखने जाता हूं, डोंट वरी अबाउट द कमांड्स, आई सेड DU। DU का मतलब होता है डिस्क यूज्ड। मैंने बोला यहां देखने पे मुझे पता चलता है कि ये फाइल 8 बाइट्स की है, बट सही मायनों में इसने कितना डिस्क यूज कर रखा है? बोले 4 KB। ऐसा क्यों? बोले 4 KB से कम मैं अलोकेट ही नहीं कर सकता हूं। I said why? That's because when you formatted a disk, the logical block size that you selected was 4 KB. तो अब आप 1 बाइट की भी फाइल बनाओ तो कम से कम एक लॉजिकल ब्लॉक ऑफ 4 KB उसको देना ही है, या 3000 कैरेक्टर की भी एक फाइल बनाओ तो भी आपको एक लॉजिकल ब्लॉक उसको देना ही है, या 4095 बाइट्स की भी फाइल बनाओ तो भी उसको 4 KB का एक ब्लॉक देना है। अब किसी ने बोला मान के चलिए कि मेरा फाइल साइज 4097 है बाइट्स, तो क्या? ऐसे ओके। अब आपकी फाइल को स्टोर करने के लिए 4 KB के 2 ब्लॉक्स लगेंगे, यानी कम से कम आपकी फाइल की साइज 8 KB होनी चाहिए। और डिस्क यहां दिखते समय क्या दिखता है? उसको मारो गोली, वो तो कैरेक्टर काउंट करता है, एग्जैक्ट कैरेक्टर काउंट इन द फाइल साइज इन बाइट्स। बट उस फाइल ने जगह कितना घेर के बैठा है डिस्क पे, दैट्स ऑल टुगेदरली अ डिफरेंट स्टोरी। दैट डिपेंड्स अपॉन द लॉजिकल ब्लॉक साइज।